Good evening, everyone. A warm welcome at Instagram Live Series 2.0. Yes, 2021. And please ignore the background noise. I'm somewhere out for the weekend and cannot miss to have our doctor who is scheduled to give a lot of information on homeopathy, post-COVID effects, and definitely a lot more. Well, today I want to tell you guys that Dr. Anshita Balwani Rathore has been an incredible part of Mommy's World for You and Me, and she has been doing a fantastic job. She is a renowned homeopath, and she has been serving her patients since decades now. Today we are going to talk to her about post-COVID effects on women, on everyone rather, and kids immunity, which has been affected a lot because there have been cases in my friend circle where women were facing weakness, their low immune system, and I really want to know how Dr. Anshita is going to give us the ideas, the improvements, and the suggestions. And I hope she is here, she's watching us. We would want you to share this live later or tag your people whenever you think that they need us, or probably they can get benefit out of it. So yes, I am waiting for Anshita. Dr. Anshita, I cannot see you. Just a second. Yes, here she is. Hello. Hi, Ethan. Thank you. Good to see you here. We're joining live. Like 2020 was a fabulous live, and 2021 has to come. Hello, Dr. Anshita. So pretty. And finally, you are here. Hi, hello everyone. How are you doing? Good to It's been see a year. you. Good to see you. It's been a I'm, year. yeah, am I audible? Is the sound clear? Yeah. Quite clear. Okay, great. Okay, good to see you. As usual, Yeah. vibrant. Yeah, you too. In fact, you're looking very pretty, and it's been a Thank you. long time now. Yeah, Last it's been one whole 2020, year. I must tell you, Anshita, your live was one of the most watched live on YouTube and Instagram as well. Yes, And okay, I didn't it know was that. fabulous to have you. Thank you. ये आपका इफेक्ट है. आपके followers, आपके आपके close friends and circle, ये उसका इफेक्ट है actually. They all adore you, Anshita, because we have our WhatsApp groups as well, where they upfrontly tag Anshita Rathore in the WhatsApp and ask me if they have the numbers, they can get the numbers, and I very proudly give your numbers because I know you are one very kind person. Really admire the work you do, the efforts you have been Thank you so putting, much. and every time available, incredible. That's really nice. Thank you so much. And It is the need of the hour that we yeah, have to be available, the kind of things happening around us. As doctors, we have to be available almost 24/7 in that period, yeah, especially. जभी वो yeah. COVID peak पे था, somewhere around April, May, June, even till Mm, early July. mm. So it was like 24/7, calm, 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 and uh, and no complaining. Just calm karna hai, no complaining. It was like that. It was like a war front. I But must tell you, Anshita, people like you make the world a better place. And thank because we people bank on you, and whenever we need you, you guys are there. That's fabulous thing to have people like you in our life. So that thank you you for so this, and thanks for joining. You are the first one we are launching for 2021. I'm super happy to yes. have you as the first one guest. All right. I am So happy to Anshita, join. yeah, so Anshula, I would like to start very quickly because as we both know that Instagram has some time limit. So quickly Yes. we'll hop on to the main topics what we have, and then later we'll go to Q&A. Right. So Yes. I want to know how has been the cases in Pune. You are in Pune, so the COVID cases are less now, or how has been this year last time when we met online and now? Yes. See, अगर मैं आज की बात करूँ, if you talk about today particularly,
So cases, number of new cases have dropped drastically. न्यू Oh, केसेस के जो इंसिडेंसेस हैं बहुत कम हो गए हैं, अभी बहुत ड्रॉप हो गए हैं. okay. एंड Hmm. दे आर नॉट कमिंग इन बल्क. पहले की तरह बल्क में केसेस नहीं आ रहे. दे आर स्प्रेड आउट स्पोरेडिकली, लाइक वन Okay. फैमिली और मे बी टू फैमिलीज ऐसे. So this is Hmm. really good because it seems like the wave is kind of fading out, but Hmm. at the same time we are seeing more kids being affected. Although the Hmm. silver lining here is कि kids are not getting very severe infection. There are like a few handful of cases that develop severe condition, but most of the Okay. kids will have very mild symptoms, and sometimes you may not even know that it was COVID unless they have obvious symptom like loss of taste or smell. If they have a viral and they Hmm. recover quickly, you may not know it was COVID or it was something else. Recovering well as far as practice. Your voice is going low now. Yeah. Yeah, it's fine. Okay, so that's wonderful to hear that cases are going low now. And yeah. All right. So Fine. the number of So, cases has dropped really, really to a very, टू डिजिट में आ जाएगा एक दो दिन में. मुझे लग रहा है शायद नेक्स्ट वीक तक टू डिजिट में आ जाएगा. वो अभी तक फिर भी थ्री डिजिट्स में है. Earlier it was like okay. 5 digit. I'm sure you know that Mumbai, Pune was Yes, yes. similar. At the Yeah, yeah. same time, Yeah. यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया थोड़ा rise हो रहा है. It is Yes. significant right now, but then we are dealing with it at our own levels. हम लोग डील कर रहे हैं. जस्ट नया इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हम डेंगू और चिकनगुनिया के लिए प्रिवेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करना हमने शुरू कर दिया है. लास्ट वीक से वी हैव Okay. डिस्ट्रीब्यूटेड सम. जैसे हम पहले कोविड में इम्यूनिटी बूस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. Right. प्रिवेंटिव भी कैसे, Hmm. इट इज नॉट अ फुल प्रूफ थिंग बट इट Hmm. मिनिमाइजेज इलनेस. सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दीज. अभी हमने शुरू कर दिया है. So Hmm. we are just doing that. My God, that's like too much. I'm sorry for the background noise. I'm in an open area. I'm very sorry for that. All right, but that's. I'm very sorry again. Some emergency, I guess. All right. No problem. So dengue, I have actually come across with my friend who has got COVID a few months ago, say 5-6 months ago, and or probably 6 to 8 months ago, if I'm not wrong. But then, do you think that COVID makes your the health affects so bad that immune system go low? They feel weakness, they are very dizzy. Most of the time काम करते हैं तो थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं rather. और ऐसे एक नहीं दो Yes, that is फ्रेंड्स को true. में कंप्लेन Yes. करते हैं. That is completely true. This is happening to quite a number of people. That post-COVID weakness, fatigue, calf में pain, calf pains बहुत लोग बोल रहे हैं. And if you are lucky, you हाँ, will get away with only hair loss. If you are lucky. If you are not, then you will have हाँ, other things like liver में swelling कभी कभी, liver function test elevated आते हैं. Diabetes is a very common thing happening after post-COVID diabetes. And but the हम्म, good part is it is people are recovering from it. मतलब we have some cases जिनको COVID हुआ, अनजाने में COVID हुआ, उन्हें पता भी नहीं था शायद, and they suddenly noticed a high sugar. They came to us, we gave them medicine, they were fine in a couple of months. But yes, it is true, हम्म, and one has to be vigilant. One has to know this कि okay ये हो सकता yeah, है, so let me do a blood test to check for diabetes. There is one uncommon complication. It's not that common. It is happening in some people. It is a kind of mild kind of paralysis which happens after viral disease. इसको Guillain-Barré syndrome कहते हैं. Even ये भी होता है. But the most commonly people will have hair loss and fatigue. That is the most common form of post-COVID effect, post-COVID हम्म, syndrome. So this is happening a lot and we are treating. People are getting better quickly. कुछ problem नहीं है. आप अपनी friend को बोलिए to get in touch with a good homeopath close to her हम्म, city, close to her area. Take medicines only 1 month. 1 month में she'll okay, completely recover. Just tell her that. And even for the hair loss, people are suffering from drastic hair loss. जैसे वो post delivery होता है yeah, ना चौथे महीने में बिल्कुल गुच्छे निकलते हैं हम्म, बालों के बिल्कुल. You are like एकदम. happy. That thing is happening with COVID patients, and but they recover also. Just they need the right advice and guidance and right diet, some हम्म, medication and some vitamins as well, and some patience. हम्म. अंशुका, एक बात बताओ, आप ये जो कोविड की जो इफेक्ट है, इसमें लिवर भी अफेक्ट हो रहा है
in somewhat cases. Yes, it is. In fact, liver के जो enzyme, liver function test जो है वो elevated आते हैं बहुत सी बार during COVID and even post COVID. And then you have to give it some time. Sometimes it will come down on its own also. In healthy patients वो वापस नीचे भी आ जाता है थोड़े दिनों में. But some people may need medication. For example, पहले से किसी को fatty liver है, किसी को diabetes भी था, पहले से liver weak था, then they need some medication. So we are giving medicines to some people. Even ऐसे platelets low हो रही थी बीच में लोगों की और ये सब भी हो रहा था during COVID. डेंगू में भी होता है तो. So this was happening. We have medicines for that. Just meet a good doctor for this. And routine में जो physicians है वो कई बार इसमें help नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं होती है. For example, platelet बढ़ाने के लिए specifically कोई एलोपैथी medicine is not available. So you have to consult somebody who is into homeopathy and who has a treatment for that. So that awareness is must because some people may not know कि क्या करना है अभी इसके लिए. They may not know it. क्योंकि क्या हो रहा है, लाइक द फ्रेंड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, उनके साथ ये सब स्टार्ट हुआ, लाइक लीवर का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुआ. आई डोंट नो इफ शी हैज अ फैटी लीवर और नॉट, बट यस दिस हैपेंड. देन द रिपोर्ट केम क्वाइट लेटर दैट शी गॉट डेंगू. तो बहुत देर से पता चला वो भी. और डिजीनेस तो है ही, वीकनेस बहुत ज्यादा है, लो इम्यून सिस्टम है. तो उसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या अब उनको, क्या डाइट पे भी उनको प्रॉपर डाइट तो है, मेडिसिन भी लेनी चाहिए. मेडिसिन इज मस्ट. एंड लाइक आई सेड, नियर बाय होम्योपैथ जो भी अच्छे हो, एक्सपीरियंस्ड या एमडी हो, उनसे कंसल्ट करें. विल गिव अ प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन. डाइट वाइज यूजुअली एक तो है ना वीकनेस के लिए ना फॉलिक एसिड एंड B12 इज मस्ट, क्योंकि वो दो चीजें हैं जो हमारी डाइट में यूजुअली भी लो ही होती है इंडियन डाइट में. विटामिन डी वीकली बेसिस पे हम देते हैं, दैट इज देयर. इसके अलावा प्रोटीन फ्रॉम फूड इनटेक में हम लोग प्रोटीन बढ़ाने के लिए बोलते हैं. प्लस आई पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि आपकी सेल्स आर इंजर्ड, तो सेल इंजरी को हील करने के लिए यू नीड मोर एंटीऑक्सीडेंट्स. फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स यू हैव टू हैव फूड विच इज अलाइव. अलाइव फूड मतलब रॉ फूड, जैसे कि स्प्राउट इज एन अलाइव फूड, राइट? उसमें से पौधा निकलता है, स्प्राउट निकल रहा है, अलाइव फूड, जिंदा चीज है. व्हाटएवर वी कुक इज नॉट जिंदा एनीमोर. So alive food means fruits and fresh nuts and dry fruits नहीं, पर nuts खाना चाहिए वैसे. इसके अलावा sprouts डेली खाना है. इसके अलावा प्रोबायोटिक जैसे कि दही, कर्ड इज द ओनली नेचुरल प्रोबायोटिक विच वी हैव इन ऑल अवर होम्स. हर घर में अवेलेबल होता है. तो अलाइव फूड में मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, नट्स हो गए और दही. एंड लॉट ऑफ फ्लूइड्स, पानी बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, बिकॉज योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड आफ्टर इलनेस. वायरल के डिजीज के बाद डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी. सो ये 5 चीजें जो मैंने बताई ना, ये आप इंक्लूड करो अच्छे से. और जो मैंने बताया प्रोटीन के लिए वी हैव गुड ब्राउन बॉइल्ड एग्स, जो ऑर्गेनिक ब्राउन, जो छोटे वाले आते हैं अंडे, ब्राउन एग्स, वो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं, वो दिस इज द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल. इसके अलावा जो लोग मीट ईटर्स हैं, दे कैन हैव स्लाइटली बॉइल्ड या ग्रिल्ड चिकन एंड फिश, नॉट फ्राइड एंड नॉट इन ग्रेवी बट बॉइल्ड, ताकि आपको थोड़ा उसका प्रोटीन अच्छे से मिले. एंड इट शुड नॉट बी टू स्पाइसी ऑल्सो, बट यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग. जैसे आपने चिकन सूप बनाया, ग्रिल्ड फिश लिया, या एकदम लाइट ग्रेवी में ये चीजें बनाई, तो आप डेली खा सकते हैं, राइट? प्लस बॉइल्ड एग आई थिंक एनीवन कैन ईट. इसके अलावा पनीर है, सोया है, थोड़ा थोड़ा जो जैसी डाइट है वैसा इंक्लूड करें. सो आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट. और इससे ज्यादा तो यूजुअली हम नहीं खा पाते हैं. एंड थोड़े बहुत विटामिन, लाइक आई ऑलरेडी सेड, फॉलिक एसिड, B12, D3, ये बेसिक्स है. सो दैट इज more than enough. Okay, so before we get into the questions, there are questions coming in, but before that I want to know 2 things. One, there are like one of my friend again who has got this thing, पानी नहीं पिया जा रहा है, plain water she cannot have. अब उसका क्या solution? वैसे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मन मार के पी लो, पानी तो है. बट यस, एक मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा आती है. कई लोग जो कहते हैं ना पानी से नौशिया फील होता है या पानी पी नहीं पाते. सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स मे हैव अ स्लाइट गैस्ट्राइटिस, जैसे कि एसिडिटी वगैरह है उनको, वो बहुत सारा नहीं पी पाते, लेकिन आप थोड़ा. तो जस्ट गेट इट चेक विद अ डॉक्टर कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसका ट्रीटमेंट एंड उसके हिसाब से जो डाइट है, एसिडिटी की डाइट है, वो आप लेंगे, इट विल हेल्प यू. प्लस पानी पीने की जब हम आदत डालते हैं कि ठीक है 15-20 मिनट में थोड़ा 2 सिप ले लिया, डेस्क पे रख लिया, थोड़ा हम पीते रहते हैं, बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट. वर्स्ट केस सिनेरियो, आपसे ये भी नहीं हो रहा, तो यू एड समथिंग व्हिच गिव्स अ फ्लेवर टू द वाटर. फॉर एग्जांपल, आपने थोड़ा सा एक चुटकी जीरा डाल दिया,
जीरा इज हेल्दी, you cannot have any side effects from jeera as such. Salt Right. डाल सकते हैं, something which has a mild flavor and which is not harmful for you. You can add it to your bottle and उसकी खुशबू भी आती रहती है, अच्छा भी लगता है. Personally I like salt and jeera in these things. अजवाइन की एक चुटकी डाल सकते हैं if you are feeling gassy. Yes. So this Yeah. flavored water can be had, कोई problem नहीं है, हाँ. But Right. again I would say if there is an aversion to water, आप पी नहीं पा रहे हो, तो just get your throat checked कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, just get it checked. No, this she's got obviously like after this detection of dengue and all. So I guess that must be the problem that she's not able to have water. दवाइयों And से other- नौशे हो जाता है, दवाइयों से भी हाँ. नौशे हो जाता है. और तो मेरा जो दूसरा सवाल वो ये है कि व्हाट आर द चांसेस कि एक बार जो कोविड जिनको हो चुका है उनके पोस्ट कोविड इफेक्ट्स जो है वो आने में टाइम लगे. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इंस्टेंट नहीं आए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 5-6 मंथ्स के बाद उनको वो प्रॉब्लम आ रही है. Not 6 but tentatively 2-3 months के अंदर हमने देखे हैं साइड इफेक्ट्स. Within 2-3 अच्छा. months you see a drastic hair fall and Okay. जैसे sleep problems, restlessness या हाँ. worry, stress, poor quality of sleep, पैरों में restlessness होना, सो नहीं पा रहे हैं, insecure feelings, those mental symptoms may come afterwards because उस फेज में तो आप रिकवर कर रहे हो, एवरीबडी इज देयर फॉर यू, सब लोग आपके थोड़े पैम्परिंग होती है, ये होती है, वो होती है, वो सब होता है. बट जैसे पोस्ट डिलीवरी होता है ना, पैम्परिंग बहुत होती है थोड़े दिनों तक, फिर पैम्परिंग बंद हो जाती है. So you need to take care of yourself also. You cannot rely on anyone else for these things, क्योंकि क्या है ना, पैम्परिंग अभी अनफॉर्चुनेटली किसी की फैमिली पैम्परिंग करने की कोई है ही नहीं, nobody is there, है ना. तो अभी what do you do, right? You have to pamper yourself. You have to take care of yourself. You have to, give yourself that time, that good diet. अभी just थोड़ी देर पहले एक patient को मैं कह रही थी, she is having a small 2-year-old child and she has lost half her hair and even her face looked as if she is like 45-year-old now and she is only 30. I know. So I was telling her, तुम बच्चे को जो खिलाती हो, बच्चे को एग्स देती हो, तुम भी एग्स खाओ. तुम बच्चे के लिए वो बनाती हो तो तुम वो भी खाओ. तुम घी की चीजें उसको दे रही हो, तुम भी खा लो ना. तुम्हें अलग से क्या करना है? जस्ट सिट विद हर एंड ईट विद हर. इसी बहाने आपका बच्चा भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो. मतलब वुमेन स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट देम. शायद वो गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि नहीं पहले बच्चों को खिलाना है, हम तो देख लेंगे बाद में. सो यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. बिकॉज़ मैं बच्चों पे आने वाली हूँ, बच्चों का टॉपिक भी है लाइन में, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क कि बच्चे बड़ा परेशान कर रहे हैं जिन जिनके घर में ये प्रॉब्लम हुई है. और अभी बच्चों का डाइट बड़ा हिला हुआ है बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड इंडोर्स. और अभी धीरे धीरे कैसा अंशिता सब खुल रहा है, ओपन हो रहा है, स्कूल्स के भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं. सो दे हैव टू मूव आउट नो मैटर व्हाट. अभी धीरे धीरे सब, अभी डाइट में क्या इंप्रूव किया जाए कि बच्चे स्कूल में भी खा सकेंगे और उनकी बॉडी को लगे भी सही. कि व्हाट डू यू सजेस्ट एज अ मॉम आल्सो एंड बहुत both ways I would say, as a mom, as a doctor, simple and basic stuff मतलब जैसे बॉइल्ड एग्स हो गया, दिन में 2 फ्रूट हो गए, थोड़े से नट्स भिगा के या भिगा के नहीं तो वॉश करके दे दिए. वेरी बेसिक थिंग्स बट कंसिस्टेंसी इज मस्ट. कंसिस्टेंसी कि आप बादाम खाते हो, आपको रोज ये 8 बादाम 10 बादाम मैं आपको वॉश करके दे रही हूँ, आपको खानी है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, या कुछ भी बहाना करके, या you give them a star for that, you give them some sticker, or जैसे हम नॉर्मली छोटे बच्चों को कैसे ब्राइट करते हैं ना, with stickers and stars and all those small knickknacks, you bright them with something and with stories. जैसे छोटे बच्चों को तुम स्टोरीज बताते हैं ना, हेल्दी ईटिंग से क्या होता है, दांतों का ऐसे होता है वैसे होता है. You have to just kind of just make up stories and make them have these things on a daily basis. ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया. It is not that right. इवन सन एक्सपोजर, बच्चों को सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बच्चों को अभी धूप नहीं मिल रही है, बच्चों को नहीं, मॉम्स को भी नहीं मिल रहा है. मॉम्स को भी नहीं मिल रहा है. मॉम्स तो पहले भी धूप में जाती ही नहीं थी ना, क्योंकि टैन हो जाता है. पहले कौन सा धूप में जाते थे? Tell me honestly, how many of us were going out in the sun? Honestly, nobody was going. No, don't ask me. मैं तो खुद विटामिन डी की ये चल रही हूँ, मेरा लो चल रहा है, बहुत लो चल रहा है. I'm on meds actually. So everyone is on vitamin D doses. That includes me also sometimes. Honestly, the kind of work we are having, it does not allow that we go outside during that sun wala period. Morning noon में हमको बाहर जाने के लिए स्कोप नहीं है. Honestly, ये फैक्ट है. तो या तो हम ये करें कि अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग जॉगिंग करें, which is not possible when the kids are having school.
अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock से आपकी परेड चालू हो जाती है. सो व्हेन आर यू गोइंग Yes. टू गो आउट इन द सनलाइट, हाँ यू मे फाइंड सम टाइम फॉर लाइक गार्डनिंग, कपड़े सुखाना, कुछ ऐसे छोटा छोटा फॉर लाइक 20-20 minutes यू कैन, जैसे आई डू दैट, 20 minutes गार्डनिंग, 20 minutes कपड़े, ऐसे कुछ छोटा मोटा, बट इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट. Yeah. सो Yeah. लेट्स टेक विटामिन डी एंड भूल जाते हैं, ठीक है. लेकिन फॉर किड्स, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, उनकी ग्रोथ हो रही है, दे नीड द नेचुरल थिंग, दे डोंट नीड द आर्टिफिशियल थिंग. सम किड्स में नीड बोथ, धूप में भी जाओ, विटामिन भी खाओ, दोनों कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इवन बच्चों का स्कूल अभी क्योंकि घर से है, so they are not able to go out in the sun, otherwise they used to play in the ground. तो I suggest that थोड़ा सा आप सुबह के टाइम या नून के आसपास, when the school is over, you send them outside for some time, unless it is extremely hot and sunny, maybe मई जून में आप मत भेजो. बाकी टाइम पे if it is लाइट सन है, या शाम को भी 4 बजे के बाद आप भेज दो उनको. आइडियल टाइम, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, आइडियल टाइम जो होता है वो है अराउंड नून, जो नून का टाइम होता है, दोपहर का टाइम 11 से 1, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर सनलाइट. बट प्रॉब्लम ये है कि उस समय हम नहीं जाते, बिकॉज वी हैव सम वर्क और स्कूल और समथिंग. So if possible for you, just make some half an hour available for that, if possible for you. And even if you have elderly in the house, बूढ़े लोग हैं घर में, तो आप उनको बोलिए कि आप उस टाइम पे आप बाहर बैठ जाओ, थोड़ा सा बालकनी में कुछ काम कर लो, you can, कुछ सब्जी वब्जी काटना, they can do something. So that is not a bad approach. Right. That's an idea you're giving me, but yes, practically 11 to 1, I'll discuss this personally with you. So yes, so this is an important thing that what we should give to kids, because now sooner or later they are going to go to school and they have to join in with the mask and with the proper precautions and everything, definitely. Okay, so Yes. now Shweta is asking, my few friends are facing a lot of weight loss post-COVID, so how much it will take time for them to get back normal weight? Is it about an adult or is it? Yeah, friend facing, adult, she's asking. Adult है, okay. See, she has to look for causes of weight loss. Post-COVID diabetes या post-COVID thyroid issues में कई बार weight loss होने लगता है. तो वो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि, और कितना weight loss है ये भी relevant है. अगर आपका 3 to 5 kgs lose हुआ है, that is not a big deal, कोई problem नहीं है, इतना तो चलता है 3-4 kgs. But more than that अगर है तो we have to see for the causes. For example, like I said, thyroid issue है, diabetes है, या severe stress है, या फिर ये है कि earlier they were consuming lot of junk food and now they are switching to only boiled and very homemade food, so that calorie intake has reduced. That can also be a cause. But then again, if they feel well, they don't feel weak, then it's perfectly fine. If the person is not feeling well, is feeling very exhausted and weak, then you have to address it, and they can even consult a dietitian or a nutritionist for a proper diet with good amount of protein, so that the body can compensate again. So multiple factors are there. एक तो disease rule out करें, दूसरा आप देखें कि आपने excess lose किया है या आपने अपना normal weight में से lose किया है. Right. If I'm overweight and I lose some, it's okay. Yeah. So ये 3 चीजें मैटर करती हैं कि आपने कितना और कहाँ से लूज किया है. और ये भी है कि एक चीज मैंने नोटिस करी कि suddenly people became health conscious, कि एकदम से they became conscious and started exercising. So if you lose some weight, then it's okay, it's fine. If you're not feeling weak, then it's okay, it's fine. Yeah, right. That's a good thing. All right. So, okay, one of my good friend has messaged above. I just scrolled up and I know her parents got COVID and अब वो पूछ रही है कि अभी पोस्ट कोविड सीनियर सिटीजन है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो अंशिता कि एक प्रॉपर केयर कैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, उनके एज भी काफी है. तो एक बेसिक जनरल पिक्चर मैं आपको बताती हूँ. सीवियर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स, इकोस्प्रिन, इस तरह की प्रिपरेशन दी होंगी, विच दे हैव टू टेक फॉर सम टाइम, मे बी लाइफ टाइम ऑल्सो. अगर वो हाइपरटेंसिव है तो फिर लॉन्ग टर्म उनको वो लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट एनी क्लॉटिंग फर्दर, क्योंकि क्लॉटिंग होना इज वेरी कॉमन एंड पीपल आर डाइंग ऑफ दैट. कोविड से निकले बट उधर हार्ट अटैक आ गया, इसीलिए एंटीकोएगुलेंट जो दवाइयां हैं वो पेशेंट्स को दी जा रही है, स्पेशली जो मेल्स है, स्पेशली, है ना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद पोस्ट कोविड लिवर एंड डायबिटीज, ये सब जो प्रॉब्लम है लिवर और डायबिटीज के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी, तो दे हैव टू चेक देयर लिवर फंक्शन एंड चेक द शुगर लेवल्स, उसको मेंटेन करना है विथ मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, जो वो कर सकते हैं, है ना.
whatever is applicable to the case. उसके बाद mental illness, कई बार depression, anxiety ये सब चीजें होने लगती हैं, तो उसके लिए guidance, some guidance is required. So कई बार बात करने से वो problem solve होती है. With some social support, they feel well. If they need to see a counselor, if they need to have some spiritual this thing, कई बार कुछ हम प्रवचन सुनते हैं, कुछ positive सुनते हैं, हम spiritual लिटरेचर पढ़ने से या ऑडियोज वीडियोस देखने से उससे भी काफी फर्क पड़ता है. इट हेल्प्स, इट डज हेल्प. मैं तो पर्सनली उसके लिए वाउच करूंगी दैट मोटिवेशनल कोट्स हैं, वीडियोस हैं, सुबह सुनना, रात को सुनना 2 बार, तो इट रियली हेल्प्स इन सम वेज. प्रेयर्स हैं, वो सब है, तो दैट इज फॉर द मेंटल हेल्थ. बाकी फिजिकल डाइट हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, लाइक थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, विटामिन, लाइव फूड, वेराइटी ऑफ फूड, है ना, वो सब है. एंड देन लव, अनकंडीशनल लव, जस्ट बीइंग देयर फॉर देम कि ओके वी आर हियर फॉर यू, हम हमेशा यहाँ हैं, आपको कुछ भी होगा विल टेक यू टू डॉक्टर, जस्ट बी देयर फॉर देम एंड दे विल बी फाइन. एक इतना भी है ना कि कोई है हमारे लिए, उतना सपोर्ट भी इनफ होता है. एंड देन दैट पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड कि नहीं, हम ही ठीक होना है, हमें, हम अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, 2-3 months में हम अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे. दैट माइंडसेट शुड बी देयर. दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट. Very nice to hear this, Anshita. Okay, there is one of our followers, the Wax Carver, and she's asking, my mother-in-law was infected in April. Now, since 1.5 months, she is facing severe cough. We had done CT scan, X-ray, blood test, along with COVID test. CT scan showed some problem with lungs. I want to know for how long this can continue. I mean, like post-COVID effects हैं ये. I cannot comment on that without seeing the CT scan report. I have to see the CT scan report. You can ask her to just connect with me and show me the report, or she can connect with any doctor in her city as well, जहाँ पे convenient हो. But एक common problem जो आती है वो है fibrosis की problem आती है. Fibrosis मतलब एक common language में अगर मैं समझाऊँ तो किसी चीज की elasticity खत्म हो जाती है, right? जैसे अगर हमें कोई इंजरी हुई, सपोज यहाँ पे कट लगा, बार बार कट लगा, डीप कट है, तो वहां की स्किन कैसी कड़क सी हो जाती है, राइट? इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इट बिकम्स हार्ड. जैसे हील्स, हमारी हील्स कैसे हो जाती है, क्रैक, हार्ड. सो लंग्स आर सपोज टू बी इलास्टिक टिश्यू, दे आर सपोज टू एक्सपैंड एंड कोलैप्स. नाउ इफ द इलास्टिसिटी इज गॉन, तो वो अपना काम कैसे करेंगी? तो पेशेंट को इरिटेशन, खांसी, ड्राइनेस, एस्थमा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं. सो फाइब्रोसिस का एलोपैथी पे लिमिटेड ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह ही देते हैं यूजुअली, बट होम्योपैथी हैज वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर दिस लंग फाइब्रोसिस. और इनफैक्ट लास्ट 1.5 साल में तो हमने देखे ही है, 1-2 पेशेंट्स मेरे हैं जिनको पिछले साल दिसंबर में हुआ था, पिछले साल दिसंबर में, तभी हमें पता नहीं था कि कोविड है, बट नाउ वी नो. बट उनको दिसंबर जनवरी में हुआ था एंड दे टुक होम्योपैथी एंड दे आर वेल नाउ. दे आर ऑफ देयर यूजुअल एलोपैथिक मेडिकेशन आल्सो. So fibrosis जो है उसको काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं विद होम्योपैथी. So if fibrosis is there, they can just meet any homeopath, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. And still, if there is something else, she can just message me the CT scan report. I'll guide for the. Yes, I'll pass your numbers after this live. If I get the message, I'll pass your numbers. All right. So one of mom, Sarah Priest is asking, is giving calcarea phosphorica to toddlers improve their bones and calcium in body? Is it true or myth? No, it is helpful. See, एक चीज मैं बताती हूँ ना, मिथ तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रू है ये. एंड यूजुअली व्हाट वी डू इज, जिन बच्चों को टीथिंग ट्रबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे आर नॉट टीथिंग दैट वेल एंड दे आर वेरी क्रैंकी ड्यूरिंग दैट फेज, एंड बहुत जैसे बच्चे नहीं, वो काटना एंड थोड़ा सा हर चीज मुंह में डालना, बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कैलकेरिया फॉस डेफिनेटली देते हैं. एंड बिसाइड्स कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में जो है, जो मोस्ट कॉमनली चलती है, इसके अलावा और भी दवाइयां हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम. जैसे अगर किसी को 1-2 आए और ऑलरेडी सड़ गए, देन वी हैव अ डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन. या आ नहीं रहे हैं, दांत निकल ही नहीं रहे हैं और बच्चा साल भर का हो गया, देन वी हैव अ डिफरेंट मेडिसिन. सो दे आर वेरी यूजफुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट आई पर्सनली फील इज बिकॉज आई हैव नॉट गिवन इट टू माय किड्स, they did not have any teething problems. उनके दांत टाइम पे आ गए, everything was fine, so we did not give them any calcarea phos or anything actually. And even with my patients, if they don't need, we don't give. But if you feel that your child is not eating that well, बहुत poor diet है, then calcarea phos के अलावा there is one 5-phos. There is a medicine called 5-phos which we highly recommend for kids who don't eat that well. उससे थोड़ी सी भूख भी लगने लगती है और उसमें आयरन, कैल्शियम, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है. It's very useful for toddlers who are fussy.
So just Okay. connect with the local homeopath and get it, and it is very useful. It's one of उसी my से favorite रिलेटेड medicines for toddlers. अच्छा, उसी से रिलेटेड ये क्वेरी है, नेहा तिवारी पूछ रही हैं कि माय 1.5 लाइक 1.5 साल की जो उनकी बच्ची है, उनके हाँ, सारे दांत एक साथ आ रहे हैं, ऑल हर टूथ इज कमिंग ऑल टुगेदर, व्हाट शुड आई गिव हर? 1.5 साल की बच्ची इफ द के। चाइल्ड ओके सफरिंग, सर। उसको कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ है तो यू कनेक्ट विद द डॉक्टर, अदरवाइज आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, आएंगे, कहाँ जाएंगे? पर हाँ, 1.5 साल में सारे दांत बाहर आना, सुना नहीं है कभी क्या सारे हुआ बच्चों के होगा एक ना, साथ में। जब जब वो सी नॉर्मली क्या 8 मंथ के 9 मंथ्स के अराउंड एक दो आते हैं, राइट? तो वो थोड़ा हम्म। डिले हुआ होगा, नाउ दे आर कमिंग टुगेदर, ऐसे अच्छा कुछ है, अच्छा। ठीक है? आई थिंक लेट मी जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम वन थिंग फ्रॉम हर, दैट प्रॉब्लम क्या है, अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? बच्चा बीमार है, लूज मोशन बार बार हो हाँ जा रहे हैं, ऐसा होता है ना कि एक दांत निकल रहा है और फिर हाँ। उस टाइम लूज मोशन हुआ, 2-3 दिन बीमार यस। रहे, फिर रिकवर हुए, फिर दूसरा निकला, तो फिर दिस काइंड ऑफ थिंग इफ इट इज हैपनिंग देन वी इंटरवीन, अदरवाइज वी डोंट इंटरवीन, ठीक है? तो क्योंकि नेहा एक्चुअली अगर क्या, यंग मदर्स बिकम वेरी फसी अबाउट किड्स, कि अरे दांत यस निकल, अरे निकले, हमारे भी तो निकले थे ना, मतलब सबके निकलते हैं। यस राइट राइट। ये बहुत अच्छा बोला आपने, यंग मदर्स को कुछ ज्यादा ही टेंशन चल रही है, जबकि हमारे मॉम डैड तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम झेल चुके हैं। बहुत अच्छा था। अच्छा अभी नेहा अगर सुन रही है तो आप प्लीज इस बात का जवाब दीजिएगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं अगर कुछ बच्चे को Yes, प्रॉब्लम है yes. तो। Neha Tiwari, I think she has become very हाँ उन्होंने irritated, बोला। cries a lot. हाँ, तो फिर इसको कुछ देते हैं, some medicine we'll give. Just नेहा आप कनेक्ट कर लीजिए, आप नियर बाय किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर लीजिए, एनी होम्योपैथ, जस्ट आपके आसपास जो हो, जो सबसे नजदीक में हो, जो इतनी छोटी सी चीज में आपको हेल्प कर देंगे, 5 मिनट का काम है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, जस्ट कनेक्ट एंड वो दे देंगे मेडिसिन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नियर बाय चले जाइए आप, ठीक है? अच्छा। एंड योर चाइल्ड विल बी काम अगेन. ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम भावना विच, इनका मुझे पता है, इनको कोविड हुआ था और बहुत टाइम लगा था। अब ये कह रही है कि आई स्टिल हैव नॉट रीगेन माई स्मेल एंड टेस्ट, I got infected in May, and in fact, I smell Oh, garbage smell most of the times, including bad body odor, which I generally never had. um, it looks like a psychosomatic disturbance क्योंकि particular smell आ रही है पर normal smell नहीं आ रही है. I would suggest you connect with me in person. We have to take a detailed history and give you proper medication. बहुत दिनों तक अगर Wonderful. smell नहीं आई है, so again it becomes a psychosomatic issue also with some people, and sometimes it is only a local issue related to nose. So medicine तो खानी पड़ेगी, ये बात confirm है. You can just connect with me or any known homeopath in your city as well. या मुझे बोलो, मैं आपको कनेक्ट करवा के देती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर से आपके घर के पास में. So we can do Okay. that as well. We can provide a referral. Yeah, she's in But yes, Delhi, so I'll give your number so that she हाँ हाँ can हाँ, speak. मैं मेरे काफी कलीग्स हैं दिल्ली में. I'll provide a contact. And नहीं तो I'll give ऑनलाइन you. we'll see. Okay, no problem. Okay, now the next query, Rupa says, my nephew is suffering from urine infection. In this situation, he gets high, I'm not, is it TEP or TEP? His WBCs are increased to 9 to 14K. Okay, sorry, I'm not aware about this. Can you read the query? Rup Singh. हाँ, That's Rupa. yes, Yeah. nephew is subness. TEP and his WBCs are increased to 9. हाँ, so whenever there is an infection, WBCs will automatically increase. वो cause नहीं है, वो उसका effect है, right? If the body is infected with something, आपका body अपने आप को protect करने के लिए soldiers खड़े करता है. वो soldiers होते हैं हाँ. आपके white blood cells, वो बढ़ जाते हैं. सिंपल सी बात है, जब infection ठीक है, soldiers अपने आप वापस घर लौट जाते हैं, कम हो जाते हैं. So you have to just treat the infection, है ना? और अगर ये infection बार बार हो रहा है, recurring है, तो I would recommend homeopathy. प्लस आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कल्चर की रिपोर्ट साथ में लेकर जाइए. यू टेल देम व्हिच बैक्टीरिया इज काजिंग इट, जो भी है रिपोर्ट्स आप लेकर जाइए, उनको दिखाइए, एंड अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक उसके लिए मेडिसिन देंगे आपको. जस्ट कनेक्ट Right. विद अ गुड होम्योपैथ. एंड आई थिंक Yeah. नेफ्यू है तो आई थिंक इट्स अ चाइल्ड, है ना? तो Yeah. Yeah. हाँ, यूटीआई की अगर बात करें तो छोटी लड़कियां जो होती, यंग गर्ल्स, इवन टॉडलर्स, 2 ईयर से लेके 6-7 साल वाली जो एज ग्रुप है, इनमें यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं. इट्स वेरी वेरी अच्छा. कॉमन एंड वी सी देम लाइक ऑन अ डेली बेसिस. तो थोड़ा अरे बाप. ध्यान देना पड़ता है इन द सेंस कि वो एवरी टाइम यू कैन नॉट गिव एंटीबायोटिक्स, बिकॉज एक तो ये है कि एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाता है, दे स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग सो मच एवरी टाइम यू आर गिविंग.
तो उसके लिए होम्योपैथी इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट टेक एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट हैपेंस इज वो बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाते हैं ना, वो अपना चेहरा बदल लेते हैं, तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नेक्स्ट टाइम. So every time the Okay. doctor will give stronger till the time they are exhausted. And then the kidney is damaged also. So you have to see that you give छोटे बच्चों को क्या शुरू से ही होम्योपैथी दिया तो it is always good for them. उनका सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है and they are saved from any harmful medication at the same time. Yes, she is writing that he 5 years and 2 years से हो रहा है homeopathy started since 6 months. 6 महीने से चल रहा है 6 homeopathy. months. So then in that case you have to change your doctor because you know अगर उसके बाद भी हो रहा है तो you have to see another doctor, है ना, maybe the doctor is not able to help you, है ना. Sometimes you know it does not click, you know, ताला चाबी मैच नहीं होता, you have to change one thing. Yeah, but फिर वही बात आती है अंशिता कि हर बार कहा जाता है होम्योपैथी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो जो अजम्पशन है ना पब्लिक का बहुत टाइम से चल रहा है कि होम्योपैथी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वेट करो अभी असर होएगा 6 महीने में, 1 साल. एक्चुअली ना सी अगर मैं क्रॉनिक यूटीआई की बात करूँ ना, अगर पर्टिकुलरली हम इसकी बात करें तो एलोपैथी में भी यही है. आप एंटीबायोटिक जस्ट नाउ आई सेड कि वो लेते गए जस्ट गोज ऑन एंड ऑन बिकॉज सिस्टम इज वीक, सिस्टम इतना कमजोर है कि दवा खाते ही जा रहे. सो अगेन कुछ बीमारियां वैसी होती है जो समय लेती है. फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस विल टेक 1 year टू हील, 1 साल का उसका लंबा प्रोसेस है. और एलोपैथी में तो लाइफ टाइम ही लेना है, फिर वो तो मतलब आप छोड़ ही दो उसको कि लेना है मतलब खाते रहो, बस लगाते रहो स्टेरॉइड्स. So anyway, it is not about homeopathy versus allopathy also. My point is कि बीमारी पे डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन है. We have had COVID cases जो 3 दिन में रिकवर हो गए, 3 दिन में, that's it, खत्म. उसके बाद या कभी कोई निमोनिया केसेस थे जिनको हमने सिर्फ 7 days मेडिसिन दी, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं दिया, they were perfectly fine. Right? और इवन यूटीआई रिस्पॉन्स ब्यूटीफुली. आई हैव यूटीआई पेशेंट्स जो साल में एक बार कभी होगा आते हैं, 3 दिन मेडिसिन एंड दैट्स इट, खत्म, फिनिश. एंड दे आर नॉट इवन टेकिंग कोर्स, वो कोर्स नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग दैट, उतना ही ले रहे हैं 3 or 5 days का बस, दैट्स इट. दे आर नॉट टेकिंग इट फॉर मंथ्स टुगेदर. राइट. So again, it depends on various factors, डॉक्टर का स्किल, पेशेंट्स की बीमारी, मल्टीपल थिंग्स. ठीक है. Okay, so now there is I see one last query. अच्छा, in between नेहा ने लिखा है कि उनकी बेटी का वेट भी नहीं बढ़ रहा है, लीन भी है, थिन भी है और फीवर भी रहता है उन्हें, जिस वजह से वो खाती नहीं और इरिटेटेड रहती है. हो so there is a long list of problems, है ना, बहुत, there is a long list. चिड़चिड़ भी हो रही है, खाना भी नहीं खा रही है. It seems like the child might be deficient. हाँ, फीवर भी आ रहा है, तो फीवर है बच्चे को तो वो कैसे खाना खाएगा ना, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा. सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर क्विकली, जल्दी से डॉक्टर से मिलो, प्रॉपर उसका फीवर का ट्रीटमेंट करो, फीवर का कॉज भी पता करे क्यों हो रहा है. इट कुड बी यूटीआई ऑल्सो. छोटी लड़कियों में यूटीआई अक्सर होता है ना, जस्ट लाइक अभी मैं बोल ही रही थी आपको. एंड हो सकता है सर्दी खांसी हो रही हो बार बार. टीनिंग फेज में बच्चों को सर्दी खांसी, डायरिया, मल्टीपल थिंग्स होती रहती है, मतलब इट्स फेयरली कॉमन. बट अगेन हम बार बार फिर एंटीबायोटिक्स दें, ये दे, वो भी ठीक नहीं है. So just connect with a nearby doctor, or you can connect with me also. I'll guide you further. कुछ problem नहीं है. And, I'll definitely give your numbers, yeah, because the child is too small to carry on. Plus we have to treat things with priority. जैसे पहले फीवर को एड्रेस किया, that is the main priority. और फिर अपने आप वो चिड़चिड़ापन और भूख अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि बच्चा अगर हेल्दी फील कर रहा है तो खाता भी है, खेलता भी है, खुश रहता है. बट अगर वो बीमार महसूस कर रहा है अंदर से, तो देन क्रैंकीनेस आ ही जाती है, मदर में भी और बच्चे में भी. Okay, so now one last query I see from Jaya. She says, my daughter often complained about stomach ache. She is 9 years. Okay. So, daughter is taking stomach ache. See, there could be n number of n number of causes are there stomach ache के. हो सकता है उसको acidity हो रही हो, या there could be अभी खेल नहीं रहे बच्चे सारा दिन घर में, तो गैसी फील करते हैं. There could be constipation हो सकता है. We need to have a detailed history to guide कि क्या है. But एक चीज मैं अभी फिलहाल के लिए बोलती हूँ, वो ये है कि just ensure that she is having motions daily once. At least दिन में एक बार motions हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. और अगर motions नहीं हो रहे हैं तो आप वैसी डाइट दीजिए जिससे कि पेट साफ हो. फॉर एग्जाम्पल आपने उसको किशमिश मुनक्का रोज खिलाया, थोड़ा सा दूध में घी डाल के दो, थोड़ा सा इतना सा, ऐसी जो डाइट होती है, जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने वाली डाइट होती है. राइट. जैसे कि आपने पपाया रोज खिलाया, या मीठे फ्रूट्स हैं, उससे पेट साफ होता है. सब्जी रोज खिलाई, खासकर लीफी वेजिटेबल, साग वगैरह, जैसे मेथी है, पालक है, इसका, तो इससे पेट साफ होता है. एंड देन पेट दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड इफ दे आर हैविंग समथिंग लाइक जैसे बेसन की चीजें, भुजिया से स्नैक्स, जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं,
दे रियली लव ईटिंग ऑल दीज पीनट्स ये वो, तो वो आप थोड़े दिनों के लिए पूरा बंद करवा दो, इवन बिस्किट्स, क्योंकि उसमें सोडा होता है एंड सोडा कैन कॉज गैस एंड पेन ऑब्वियसली। तो ऐसे जंक आप थोड़े दिनों के लिए बंद कराओ एंड कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दो, एंड हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती देन यू डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। राइट। तो अब नेहा खुद की प्रॉब्लम पूछ रही है, वो कह रही है मुझे बहुत सारा एक्ने और स्पॉट्स है, आपके पास होम्योपैथी में इसका कुछ इलाज है? है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई मीन इट्स वन ऑफ द वेरी लाइक कॉमन चीज हम करते हैं। ऑल्दो अगर स्कार, आई थिंक स्कार के लिए किसी ने लिखा था, अगर बहुत गहरे स्कार्स हैं तो सम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड है। अगर बहुत डीप गड्ढे जैसे हो गए हैं, अगर स्कार्स हो गए, हाँ, हाँ, तो सम हाँ। वो डर्माब्रेजन वगैरह जो टेक्निक्स होती है वो जरूरी होती है करने के लिए उसको ठीक। लेकिन अगर एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, तो आप वो सब ट्रीटमेंट अभी नहीं करा सकती हो। पहले तो एक्ने ठीक होना चाहिए, स्किन थोड़ा, इट शुड नॉट बी रेड एंड इन्फ्लेम, लाल लाल धब्बे धब्बे हैं अगर, तो वो बिल्कुल भी उसको कुछ हम्म, करना नहीं है। पूरा एक्ने हम्म, ठीक हो गया, देन यू फोकस ऑन द स्कार्स। इफ दे आर डीप यू गेट इट ट्रीटेड विद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद अगर हम्म, आपको लगे कि नहीं वो हल्के से हैं, तो जस्ट लेट इट बी, इट्स ओके। ठीक है, यू कैन हम्म, इवन लिव विद इट, इट्स ओके, सम पीपल लिव विद इट। पर हम्म, यू हैव टू फर्स्ट ट्रीट द एक्ने, दैट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एक वन पर्सन इज आस्किंग अबाउट वेरिकोज। Yes, I सो was about देन इफ, to. हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो देन यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर कि दे शुड चेंज द मेडिसिन, कि वो क्यों काम हम्म, नहीं कर रही है। और ब्लड प्रेशर पे हम्म, भी ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इसके अलावा योगा के हम्म, कुछ आसन हैं जो वेरिकोज के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि ब्लड फ्लो जो है पैरों से हार्ट की तरफ वापस लेकर आते हैं। थोड़ा योगा हम्म, मैं रिकमेंड करूंगी उनको, कुछ थोड़े बहुत आसन है that is there, and talk to your doctor about changing medicines, or maybe change your doctor if it is not working. Especially अगर remote treatment चल रहा है तो फिर I would say कि आप personally मिलो डॉक्टर से, who takes the proper right. history and in person आपसे मिले। वो remote treatment में बहुत चीजें मिस हो जाती है। It's not the ideal way to see a case which is chronic. ठीक है? Hmm. So that I would recommend, and yoga. That's it. All right. So wonderful suggestions, Anshita. I really cannot believe that we've already spent like 40 minutes and session has come to an end. I really don't want to go. पता नहीं चलता है whenever I talk to you, and this always I happens, know. always. Next time And we'll I have more really, time. 1 घंटे का लगेंगे. I know you come on you will get a lot many questions, and so many people would love to meet you, contact you, because there are moms who are not able to reach out and understand that we are doing this live Yes, on I Instagram, know. or probably on WhatsApp also they don't get time. बच्चे हैं, सब कुछ family है. हाँ, But it is yes, difficult. here, Yeah. yeah, so here, whoever is watching, guys, at Mommy's Call for you and me, I would suggest you guys please connect with Dr. Anshita. Ask me, I'll give you the numbers. She is one of the best person in homeopathy you can get around you for any kind of problem. Like जितना मैं सुनती हूँ हर बार अंशिता, it's really overwhelming that you give that much of time, and the knowledge what you have is recommendable. I try my best. Abhi, I'm planning to have a separate session for kids and COVID and kids immunity. एक अलग से session Okay. मैं जल्दी update Hmm. करूंगी, maybe within next week. Kids and COVID Yeah. and kids and immunity. Okay, we'll have this Okay. session, especially बच्चे और ये जो इनकी बच्चों की problems है उस पे focus करेंगे. I'm sure you will love to join, and a lot of Yeah, people yeah, no from problem. your family will join. Yes, yes. In fact, Anshita, we have this expert call series going on wherein we call all the experts. I'll give you the details on that. That's not Love to join. very routine basis, but that comes only once in a month or once in 2 months. Depends on the experts' availability. So I'll discuss that thing with you. That Sure, happens sure. on, I would love we to arrange join. that on Zoom. On Zoom, we do not have any limitations. So maximum parents or kids can join on that. Great, That's why. great. That would be great. So thank you I would so love to much. join. Thank you so much. It Thanks. was nice having you. And I'll see you Thanks. sometime very, very soon. Yes. Chalo. Okay. Take care. Take care. Thank Bye. you. Bye. 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 So, guys, what a wonderful session. I want to tell you guys that I am not in my city. I'm traveling today, but all thanks to the network and everything which was in our pair, and we could have this live with Dr. Anshita. And I am definitely going to bring her very soon on Facebook, and for the Zoom session I was talking to her, because she is so knowledgeable that we really want to have all the knowledge she have, and
व्हाई नॉट यार, जब कोई आपको नॉलेजेबल बंदा मिल रहा है और आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही हैं, तो हु वुड नॉट लव टू हैव. So this was the launch of Instagram Live Series 2.0 today. I'll see you once again on coming Friday with another expert. Till then, take care, stay connected, stay tuned, and don't forget to follow Mommy's World for you and me. Good night. Bye bye. Happy weekend.